अस्सलाम वालेकुम। तो कुछ जो लोग पायो चने खा रहे हैं वो तो खा रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं खा रहे, तो कम से कम हम आई थिंक वी नीड टू बी एनर्जेटिक हियर. It's a very wonderful morning in Lahore, mashallah, I think. Good to see all of you, good faces of different organizations. Thank you very much for background and thanks for placing my bit of youngish picture. So I'm quite glad and happy right in the morning. अच्छा, coming to the topic, जो बड़ा एक इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़ेदार टॉपिक है अक्षत भाई, और आपने it's an honor that you are in this conference on this topic कि adversary से allies की तरफ. So I'll actually use the bilingual mode on this. लेकिन मेरे पास उससे पहले I'll take a couple of points to think about that where the modern HR or today's HR is heading at. There are a couple of areas जो अगर हम देखें कि HR is now more data driven और HR which is now human capital development और हमारे यहाँ हम तो इसको human development services brand कर रहे हैं. Human development services is to get the maximum efficiency from the humans while also taking care of the humans, while having the value system in place, while having all the parameters in place whereby we should focus on the performance and talent nurturing of the humans. HR का जो role है वो shift हो रहा है from a traditional typical HR role to a strategic function, and it's not only अभी shift हो रहा है बल्कि वो organizations जो कि strategy को link करती हैं और merge करती हैं with HR, they are very successful organizations. अगर आप देखें दुनिया की बड़ी-बड़ी organizations में, so HR is not a back office function. HR is a front business line function. We need to understand this and we need से बुरादी के organization को समझना चाहिए कि HR जो है वो कोई background वाला function नहीं है, बल्कि HR एक ऐसा function है कि जिसके अंदर उसकी alignment business के साथ होना 100% जरूरी है. Thirdly, HR के साथ मिलके जो लीडरशिप की कैपेबिलिटीज हैं और जो पोटेंशियल है, जिसको बहुत सारे jargon है, words I don't want to lecture here, but you already understand what the succession planning is, how we link it with overall mechanism of the leadership and fill the gaps and what the top leadership and then different tiers of the leadership is. However, when we talk about HR, we talk about the leadership competency frameworks, what the organization desires from different strata and segments within the organization. उसके लिए पहले organization का एक अपना vision होना चाहिए. Then once the vision is developed, then there are strategic objectives. Once the objectives are defined, then we have goals and so on and so forth. And for that people to actually make up those goals and objectives, we need strong humans who are capable enough. जब ये सारी बातें होंगी तो इसको हम कहते हैं शेयर्ड विजन. शेयर्ड विजन ये होता है कि एक मेरा विजन है, एक आपका विजन है, सब लोगों का विजन है. शेयर्ड विजन इज अ कॉमन गोल टू अचीव सम कॉमन ऑब्जेक्टिव. द रोल ऑफ द HR is not actually to develop that goal, but the role of HR is to facilitate. Job of the HR is to facilitate at each and every step of the goal formation and right from the goal formation to the right man and right job at the right place. That's the key challenge. Okay, this is वो कहते हैं ना easier said than done. There are loads of challenges. ये तो कहना एक अलग बात है, but my experience in now I think over 10 organizations, मैंने लंदन में भी काम किया, कोलंबो मलेशिया में काम किया, पाकिस्तान में काम किया, and in my humble capacity different areas को देखा, और academics में भी academia में काम किया, healthcare है इसमें, और corporate sector में काम किया. मेरी जो एक understanding है वो ये है कि there is nothing else but a communication gap between the top leadership and the middle leadership and the line leadership. क्योंकि जो लीडरशिप ने विजन बनाया होता है वो उन्होंने मेरी तरह ये 2-4 कागज रखे होते हैं और उसके बाद वो उसको जेब में डालते हैं और अल्लाह फैसला, जिसका रिजल्ट ये होता है कि देयर इज अ हाई अटेंशन राइट on the middle level end
at the line level. So communication is very important. Brainstorming is very important. हमारे यहाँ organizations के अंदर होता ये है कि चंद लोग जो बैठे होते हैं ऊपर, और ये मैंने देखा इवन बड़े-बड़े institutions 10,000 प्लस के वर्कफोर्स के साथ भी काम कर रहे होते हैं, वो अगले पर ऊपर बैठे होते हैं और वो अपनी तौर पे बंद कमरों में विजन बनाते हैं और उसके बाद उसको डिसमिनेट नहीं करते। और वो वाली ऑर्गेनाइजेशंस जो कि लोगों को शेयर्ड विजन के साथ लेके चलती हैं, दे आर सक्सेसफुल। और वहाँ पे इवन जिस तरह से हमने टॉपिक बयान किया है, तो वहाँ पे उसकी जरूरत ही नहीं होती कि वो दे आर एडवर्सरीज, दे आर नॉट एडवर्सरीज एज सच, दे आर पार्टनर्स। सो ए रोल ऑफ एचआर इज पार्टनरशिप एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन I think technology is one of the pivotal roles to play. For example, बहुत सारे चीज़ें आप अपने ग्रुप्स में कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में कर सकते हैं, टीम्स में कर सकते हैं। और अब देख रहा था हम लोग अब यूज़ कर रहे हैं, टीम फ्लैक्ट यूज़ करते हैं। तो टीम फ्लैक्ट में आप गोल्स होते हैं, शेयर्ड गोल्स होते हैं, आप वो डिफाइन कर सकते हैं। So leverage the technology, number one. Number two, use of the AI, artificial intelligence अभी improve कर रहा है सारी दुनिया में आ रहा है। We should be early adopters to AI, and in the AI there are a number of good things which we can adopt. Like for instance, आप recruitment के level पे, retention के level पे, employees से communication के level पे, we can do a lot and we can do miracles. सारा implement ना भी करें, कुछ ना कुछ जो छोटा मोटा हम जहाँ पे कर सकते हैं वो हम देख सकते हैं। इसमें दो बड़ी इंटरेस्टिंग मैं केस स्टडीज देख रहा था, कुछ पाकिस्तान में भी है, आई थिंक दे आर अडॉप्टिंग यूनिलीवर कर रहा है कुछ, आई डोंट वांट टू नेम मच ऑन दिस, लेकिन इंटरनेशनली मास्टर कार्ड ने बड़ा अच्छा किया, दे हैव इम्प्लीमेंटेड एआई इन देयर एचआर। उसके बाद आईबीएम ने बड़ा अच्छा किया, टेक्नोलॉजी कंपनीज पाकिस्तान में बहुत अच्छा कर रही हैं इसके, जो टेक कंपनीज हैं, और दे आर अडॉप्टिंग इट एज ए कल्चर। जब ये सारा काम हो जाता है, ये जो मैंने आपको कहा कि शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन है, कम्युनिकेशन है, गोल सेटिंग है, बड़ी सिंपल सी बातें हैं, और जब वो चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद हम एक चीज़ को एनफोर्स करते हैं और अडॉप्ट करते हैं, दैट इज द कल्चर व्हिच इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। सो टू मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द आउटकम ऑफ द एंटायर एक्सरसाइज इज दिस culture. And I tell you, I worked in one of the big IT companies in Kuala Lumpur, Malaysia. It was over $1 billion revenue company. वहाँ पे जो ओनर थे, वो खाने के टाइम लाइन पे खड़े होके सबके साथ खाना खाते थे। कल्चर वाज कि खाना उन्होंने इकट्ठे खाना होता था, प्लस लोग किसी भी टेबल पे जाके बैठ जाते थे, और एट द सेम टाइम जैसा नमाज का टाइम है तो नमाज मुस्लिम कंपनी, तो नमाज में इकट्ठे पढ़ रहे होते थे। सो मेरा कहने का मकसद है, मैंने यहाँ पे एक इदारे में देखा, बहुत बड़ा नाम है, मैं नाम तो लूँगा ही नहीं उसका, वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड अबव, उनके लिए वो जो खाने वाली जगह है वही अलग है। मैंने कहा यार वॉशरूम भी अलग कर लें, आपने ऐसे कोई खाने वाला तकल्लुफ़ किया हुआ है। अच्छा, वो बहुत सब हमने काम ऐसे शुरू कर दिए कि मुसलमानों के लिए हमने, सॉरी अगेन उसमें, कि मस्जिदों में सफ़ हमने अलग कर दी कि भाई ये जो ना मुख्तस कर दिया, ये बड़े सीनियर लोग आके इधर बैठते हैं, नमाज इधर पढ़ेंगे। दिस इज़ नॉट कल्चर, दिस इज़ नॉट शेयर्ड विजन। तो हमें शेयर्ड विजन को, शेयर्ड कल्चर को शेयर्ड वैल्यूज़ में कन्वर्ट करके, कम्युनिकेट करके लोगों के साथ हमें उसके साथ मैच करना चाहिए। इफ वी डू दैट, देन हायर विल बी द रिटेंशन। आउटकम क्या होगा? कल्चर विल बी वेरी गुड। इट्स नॉट ईजी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में से आप लोगों को ऑफर करें, उनको तोड़ें। थर्डली, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हाई परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस क्रिएटिंग पार्टनरशिप बिटवीन business and HR managers, to me HR is also a business manager. So ये लाइन ब्लर होनी चाहिए, और जो बाकी लोग हैं, जो बिजनेस के लोग हैं, लाइन के लोग हैं, they are also HR managers. So HR is part or shade of the leadership. यानी लीडर जब कोई भी होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो HR भी देख रहा होगा, वो IT का भी लीडर होगा, वो AI भी जानता होगा, वो फॉर इंस्टेंस बिजनेस को भी जानता होगा, तब वो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो सक्सेसफुल होती है। उसको शेयर्ड वैल्यूज कहते हैं। वरना क्या होगा, हम इस टेबल पे बैठे हुए साइलो में काम कर रहे होंगे, उस टेबल पे बैठे साइलो में काम कर रहे होंगे,
और ये चीज़ मैंने प्रोनाउंस्ड नोट की है एकेडेमिया में और हेल्थ केयर के अंदर। एकेडेमिया के अंदर ये वाला डिपार्टमेंट है क्योंकि ये वाला ABC डिसिप्लिन है, तो लिहाजा वो बिल्कुल ही वहाँ पे करते हैं। इसी तरह से जो हेल्थ केयर है उसमें इस चीज़ के कंसल्टेंट हैं और वो वहाँ पे रहते हैं। लेकिन वेस्टर्न वैल्यूज में, वेस्टर्न कल्चर के अंदर और जो डेवलप्ड कल्चर है, वेस्टर्न भी छोड़ दें, उसके अंदर अब क्रॉस डिसिप्लिन, क्रॉस फंक्शनल और जब आप देखें तो इवन क्रॉस इंडस्ट्री लिंकेजेस डेवलप हो रहे हैं, ठीक है ना। आई जस्ट कंक्लूड बट द लास्ट पॉइंट, आई वाज जस्ट वाचिंग अ वीडियो आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे ऑन दिस, वो स्टेथोस्कोप चेंज हो गया, कोई नया स्टेथोस्कोप आया, मुझे आई एम नॉट अ डॉक्टर ऑन दिस बट आई जस्ट सॉ दैट। एंड इंटरेस्टिंगली उन्होंने क्रॉस डिसिप्लिन में जाके ये सोचा कि डॉक्टर साहब जो हैं वो पहले जनाब चेक करते हैं, वो हमारी तरह नहीं होता, हमारी तरह नब्ज भी चेक करते हैं ना, हाथ से भी दिल की धड़कन है भी या नहीं, बंदा बैठा कहते हैं फारिग हो गया, बट एनीवेज तो वो स्टेथोस्कोप को उसके बाद लगाते हैं, फिर पीछे लंबा सांस लो, जो सांस बंद कर दो, वो ये नहीं पता सांस बंद करके वापस भी आना है नहीं आना, ठीक है। What they have done, they have developed a machine, and you can actually search on the net, by using cross-discipline research, and that machine can actually scan simultaneously. आपको ना MRI की जरूरत है, ना आपको X-ray की जरूरत है, ना आपको किसी चीज की जरूरत है। There and then डॉक्टर सर्च करेगा, स्कैन करेगा, बताएगा कि भाई यहाँ पे ये मसला है, ये इशू है। ज़ाहिर प्रिसीजन होती है, not 100%। So उन्होंने कैसे अचीव किया? उन्होंने ऐसे अचीव किया कि उनके जो लोग थे HR के और उनके जो लोग थे बिजनेस के, they were aligned and they worked together under one roof, cross discipline, cross departmental communication, shared vision। ये फलाने का है, ये फलाने का है, ये HR का है, ये नॉन HR का है, ये उसका है, ये IT का है, ये कहानी नहीं होती। So please इस कहानी को हमें ख़त्म करना चाहिए। I remember I worked with Habib Bank, HBL, और HBL ने एक काम ये बहुत अच्छा किया था जब ये प्राइवेटाइज हुआ बैंक, तो मैंने ये लेगेसी इंस्टीट्यूशन के साथ काम किया, बहुत सारे लोग हमने देखे कि हमने उन्हें रीस्किल किया। One of the important things which the bank did was on a global level कि बैंक ने लोगों को क्रॉस फंक्शनल प्लेस कर दिया। सो बिजनेस वाले जो साथ थे उनको वन फाइन मॉर्निंग उनको कहा कि भाईजान कल से आप ऑपरेशंस के हेड हैं, ऑपरेशन वाले को कहा आप HR भी देखेंगे, लीगल वाले को कहा आप ये देखेंगे। अब आप कहेंगे यार तो एक्सपर्टीज होती है भाई, क्या करेगा वो, उस तरह एक्सपर्टीज सारी होती है, ऑर्गेनाइजेशन का शेयर्ड वैल्यू है, शेयर्ड विजन है, फायदा क्या हुआ, ऊपर से टॉप लीडरशिप में से भी लोग जाते हैं। सो बिजनेस कंटिन्यूटी इज एंश्योर्ड, वैल्यू सिस्टम इज एंश्योर्ड, people are developed, succession planning is developed। तो ये मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि इन चीज़ों को, इन प्रैक्टिसेस को अगर हम अडॉप्ट करें, then we are in a tough economic stage, we are in a tough cycle जो हम जिसमें चल रहे हैं, but IT, AI, fostering the collaborations, networking and cross-functional teams, this is the key for success। Thank you very much, जज़ाकल्लाह खैर। अगर कोई सवाल है तो I can take up, अगर I don't know फॉर्मेट के मुताबिक तो शायद सवाल नहीं है, but anyways, thank you।